Hello students, how are you? So students, today we will discuss the numericals which are based on the electric field. ठीक है, अभी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी की. ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं एंड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो अपन सॉल्व करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो first numerical is, this is very easy numerical. Suppose this is any charge plus 4 microcoulomb. Okay, this is any charge plus 4 microcoulomb, and this is the other charge minus 6 microcoulomb. Okay, and the distance between them, suppose this is the charge and this is the charge. Okay, this is q1, okay, and this is q2. Okay students, and the distance between them, suppose this is the 2 centimeter. Okay, this is the 2 centimeter. Okay, so find electric field at midpoint, at midpoint of both charges, midpoint of both charges. This is the question. Okay students, so how can we solve it? सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ये होना चाहिए that we know that the plus charge always emits the electric field. Means the electric field of the plus charge means positive charge is always radially outward. This will be always radially outward. क्या ये चीज अपन ने देखी थी? Okay, and the electric field of the negative charge is radially inward. This is radially inward. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए. अगर ये अपने पास प्लस चार्ज है, ओके, दिस इज द प्लस चार्ज. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडिली आउटवर्ड. इससे बाहर निकलेगी. भाई यहां से देखो क्या इससे ये आउटवर्ड निकल रही है. सो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द E1. एनी डाउट? दिस इज द E1. भाई फोर्स वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ध्यान रख लेना. Okay, next, if we want the direction of the electric field for the minus 6 microcoulomb charge, this is the negative charge. Okay, और negative charge में क्या होता है? Inward. ठीक है, अगर ये चार्ज है then electric field will be inward to this. इसकी तरफ आती हुई दिखेगी अपन को. Okay, electric field will be readily inward to the negative charge. So this is the E2, electric field of the second charge. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डायरेक्शन. पहली बात तो ये पता चली. अब बात आती है मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज एनी पॉइंट P. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज द 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. ओके, सो वी कैन फाइंड इट. यस, हाउ कैन वी फाइंड इट? लेट्स सी. Okay, first we will find the electric field due to the first charge. Okay, E1. Okay, we know that the formula of electric field is K. Suppose students, एक चलो इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं. Suppose this is in vacuum. Okay, both charges are placed at vacuum. ओके, वैक्यूम के अंदर ये प्लेस है. ओके, एंड वी नो दैट द K मीन्स कांस्टेंट फॉर द वैक्यूम इज 9 into 10⁻⁹. ओके, वी नो दैट दिस इज द कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, एंड द यूनिट ऑफ दिस न्यूटन कूलम स्क्वायर, sorry, Newton meter square per coulomb square. Newton meter square per coulomb square. So this is the question. Okay, क्या आपको suppose given है for the vacuum.
Okay, so this is the E1. We know that formula is K Q, electric field away. Okay, so this is the Q1 upon distance. Okay, this is the distance. But यहाँ पे P point की बात कर रहे हैं अपन. So P point के लिए distance क्या आएगा? This is the 1 centimeter. Okay, चलो एक बार के लिए अपन इसको कितना लेट कर लेते हैं R. Suppose this is equals to R. अगर ये R है, so we can say this is also R. Okay, so this is the R square. Any doubt? Okay, next E2 will be, this is also K Q2 upon R square, क्योंकि R तो सेम है ना अपने पास. मिड पॉइंट मीन्स R is equals to 1 centimeter and R is equals to 1 centimeter. So these are the electric field of the first and second charge. We know that direction is same for the both electric field. So the total electric field will be the sum of both. भाई अगर डायरेक्शन सेम है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सम. सो दिस विल बी द E1 प्लस E2. Any doubt? Okay, so we can find it. Okay, this is the K Q1 upon R square. Okay, plus K Q2 upon R square. Okay students, so K, ठीक है, क्या अपन K को कॉमन ले सकते हैं? क्या अपन R स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं? This is the R square. Okay, so this will become Q1 plus Q2. Okay, चलो वैल्यू पुट कर दो इसकी. Okay, this is the K. Okay, चलो K की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं. This is the 9 to 10 power 9 for vacuum, ध्यान रख लेना भाई. Okay, R distance is 1 centimeter. स्टूडेंट्स क्या अपन यहाँ पे डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर रखेंगे? नो, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द MKS, अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक किस में ले रहे हैं? दिस इज द MKS सिस्टम. ओके, सो दिस इज द मास. ओके, दिस इज द सेकंड, दिस इज sorry, this is the meter, this is the kg, this is the second. Okay, meter, kilo and second. So this will be in the meter. Okay, so अपन इसको किस में लेंगे? मीटर में. अगर ये बताओ 1 सेंटीमीटर है देन इट विल बी मीटर 10 पावर माइनस 2. ओके, 1 सेंटीमीटर को 10 पावर माइनस 2 मीटर. सो दिस इज 10 पावर माइनस 2 होल स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज द Q1. Q1 इज 4 माइक्रोकूलम. ओके, सो दिस इज 4 माइक्रो मीन्स 10 to power minus 6. Okay, micro means 10 to power minus 6, then plus. Okay, then this is minus 6. अब देखो माइनस लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि अपन माइनस डायरेक्शन में यूज कर चुके हैं. Okay, this is used in the direction of the electric field, so the minus cannot be applied. Okay, so this is the 6 into 10 to power minus 6 coulomb. Okay, क्या अपन इसको सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. देखो कैसे. This is 9 to 10 to power 9. Then upon this is the 10 to power minus 4. 10 to power minus 4. Okay, क्या अपन यहाँ से 10 to power minus 6 को कॉमन ले सकते हैं? Okay, then अपने पास क्या आएगा? 10 to power minus 6 आ गया. Okay, and यहाँ से क्या आएगा बताओ? 4 plus 6. 4 plus 6. Okay students, any doubt? भाई दोनों अपन ने क्या ले लिया? कॉमन. तो बचेगा क्या? 4 plus 6. Okay, so this is 9 into, चलिए इसको अपन ऊपर ले जाएं, then it will become 10 to power plus 5. 10 to power 9 and 10 to power minus 5 is equals to 10 to power 14. Okay, 10 to power 9 plus 10 to power 4, so it will be 13. Sorry, 13. Okay students, 10 to power 13. Okay, and then this is 10 into 10 to power minus 6. Okay, so we can solve it. This is 10 to power 13 and this is 1, so this will be 10 to power 14 and minus 6, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है. 14 minus 6 is equal to 10 to power 8, so this will be 9 into 10 to power 8. Okay, and this is the electric field and the unit of electric field means Newton per coulomb. Okay, so this is the answer. बोलो स्टूडेंट्स कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को ऊपर. ठीक है, अपन यहाँ पे क्या किया? जिसमें 10 to 4 माइक्रोकूलम. माइक्रो मीन्स
10⁻⁻�6। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बोलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अपन ट्रायंगल का क्वेश्चन लेते हैं। ओके, दिस इज द लीनियर चार्जेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द ट्रायंगल। Okay, suppose this is any triangle. Okay, and this is plus q charge. Okay, and this is, suppose this is the minus 2q charge, minus 2q charge. Okay, this is the A vertex, this is the B, and this is C vertex. Okay, distance between them A means this is the equilateral triangle. Question is, find electric field at point C. At point C, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब देखो वही बात है, C पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अगर अपन बात करें प्लस Q चार्ज और C की, इसको भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, इसका आप भूल जाओ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड? तो अगर मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कंसीडर करूँ, सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द E1। सपोज दिस इज द फर्स्ट चार्ज, ओके, दिस इज सेकंड चार्ज। बोलो बात समझ में आ रही है? दिस विल बी E1 डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट चार्ज। सही क्या भाई? देखो, दिस इज द पॉजिटिव रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड ही तो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पॉजिटिव चार्ज मींस रेडियली आउटवर्ड। बोलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। बात करते हैं माइनस 2q चार्ज। दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, अब अगर अपन बात करें E1 की, ओके, सॉल्यूशन की बात करते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट, सो दिस इज के, फर्स्ट की बात में चार्ज क्या है, Q, सो दिस इज द Q अपॉन A स्क्वायर। And out, this is the E2 second electric field and this is K। ठीक है, क्या नेगेटिव चार्ज को लेंगे? नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन अपन यूज कर चुके हैं। ओके, सो दिस विल बी 2q अपॉन A स्क्वायर। बोले यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी है? ठीक है, अब अपन बात करते हैं, दिस इज द E2, okay, and this is E1, this is E1। अब देखो वही बात है, रिजल्टेंट अपन को फाइंड आउट करने, तो रिजल्टेंट अपन कैसे करेंगे? इसके बीच में फाइंड आउट करेंगे, बट कैसे करेंगे? इसके बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एंगल बिटवीन द बोथ वेक्टर्स, दिस इज द वेक्टर ऑब्वियसली, तो इनके बीच का एंगल अपन को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। If this is equilateral triangle, then this is the 60-degree angle, okay, and we know that this is a 180 degree, okay, so the remaining angle will be 120 degree, means this angle will be 120 degree, and it out, okay, this is 120। बोलो ये बात सही है? मतलब एंगल अपन को पता चल चुका है, तो क्या अपन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at C point, okay, this will be, भाई वही बात है, वेक्टर है, वेक्टर का फॉर्मूला अपन जानते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रूट। क्या यही होता है अपने पास रिजल्टेंट? सो वी कैन फाइंड इट।
Okay, first this is the e1 square. Okay, this is the e2 square plus 2 e1 e2 cos 120 डिग्री. एंड इट आउट, एंड इट आउट. ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर दो. दिस इज द के क्यू बाय ए स्क्वायर, लेकिन इसका होल स्क्वायर है. ठीक है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा. दिस विल बी 4. बोलो कर सकते हैं. ओके, देन प्लस के स्क्वायर क्यू, सॉरी दिस इज 4q, 4q square then upon a4 and it out. Okay, we can also write this 4k k square q square. This is the 4k square q square upon a4. भाई इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी है, आपको केवल इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है. ठीक है, दोनों को क्या करना है, होल स्क्वायर. देन प्लस 2e1, 2 इंटू e1, e1 की वैल्यू बताओ कितने है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द के 2q बाई ए स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट cos 120, cos 120 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, देखो कैसे अपन कर सकते हैं. दिस कैन बी रिटर्न cos 180 माइनस 60 डिग्री. एंड आउट, cos 180 minus 60 degree, and we know that this 180 minus 60 is in the second quadrant. Okay, and in the second quadrant the value of cos is negative, तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ये बात तो पक्की होगी. दूसरी बात करते हैं cos 60. cos 60 की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, क्योंकि अपन जानते हैं cos 180 माइनस 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस cos 60. बोलो सही है बात, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको 11th क्लास में बता भी रखी है. सो दिस विल बी माइनस हाफ बिकॉज cos 60 इज हाफ. ओके, सो दिस विल बिकम माइनस हाफ. ओके, सो स्टूडेंट्स cos 120 is equals to minus half. Okay, this is minus half. Add it out. Okay, so we can solve it. Add it out. ठीक है, चलो अपन इसको सोल्व कर लें. देखो स्टूडेंट, दिस इज द 1k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन a4 एंड दिस इज द 4k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 4. ओके, क्या अपन इसको 5k स्क्वायर q स्क्वायर बाई a4 नहीं लिख सकते, इन दोनों का अपन ने क्या कर दिया, एडिशन. बोलो लिख सकते हैं. देन प्लस, अब इसको अपन सोल्व करते हैं. देखो कैसे, क्या इसको अपन लिख सकते हैं, 2. दिस इज द k इंटू के, देन दिस इज द k स्क्वायर, q इंटू q मीन्स q स्क्वायर एंड a इंटू a मीन्स a4. एंड इट आउट. ओके, सो दिस विल बिकम 7k स्क्वायर q स्क्वायर a4. तो यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छा एक चीज हो, यहाँ पे एक रूट लगाना अपन भूल गए. ओके, सो दिस विल बी होल रूट. ओके, दिस विल बी होल रूट एंड दिस इज होल रूट. ओके, तो क्या अपने पास वैल्यू आएगी √7. ओके, दिस विल बी k स्क्वायर q स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी हटा दो, दिस इज द k क्यू अपॉन a स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी न्यूटन पर कूलम. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखो नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन सपोज करो यहाँ पे -2q होता, -q होता ओनली, तो आप वैसे ही कर सकते थे इसको. ठीक है, तो इस बार अपन ने क्या किया, वैल्यू चेंज की है. ओके, तो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया. समझ पा रहे हैं, अगर अपने पास ये -q होता तो इजीली अपन क्या करते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं, फिर अपने पास इजीली सॉल्व हो जाता. ठीक है, बट अपन इस बार क्या किया, इसको चेंज कर दिया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर क्वेश्चन.
सपोज दिस इज द स्क्वायर, क्या ये आपको कैमरे में दिख रहा है क्या? यस, ओके। So suppose this is the plus q charge, this is plus q charge and this is plus q charge. Okay, suppose this is the A, B, C and this is D. Okay, distance between them A and A. Okay, क्वेश्चन क्या है अपने पास? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट। सी पॉइंट पर अपन क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अपन जानते हैं क्या अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले एक ही बात कर लें। ओके, बाकी इन दोनों का भूल जाओ एक बार के लिए। ओके, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, we know that this is a positive charge, so the electric field of this charge will be radially outward. Okay, this is the EA, radially outward. Any doubt? Now this is the positive charge and we know that this positive charge also has the electric field in the radially outward direction. This is the E D. Okay, this is positive charge and we know that this also positive, so this the direction of the electric field will be radially outward, so this is the EB. बोलो इसमें कोई दिक्कत है? कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। ओके, सो EA, ओके, दिस इज K, ओके, दिस इज द Q upon A square. Any doubt? Now this is the EB, this is also K Q upon A square and this is the EC and this is also K Q by A square. Okay, means we can say both are equals to all the three of are equals to E. इन सबको अपन ने किसके इक्वल मान लिया? ई के इक्वल मान लिया। बोलो कर सकते हैं ये चीज। दूसरी बात करें, क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डी, ओके, क्या अपने पास इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है? ऑब्वियसली दिस इज द 90 डिग्री एंगल। क्या अपन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके, सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस। ओके, सो वी कैन से दिस इज द ई आर। Okay students, and we also know that this is the another direction of the plus q charge, so this is EA, तो यहीं पे क्या आएगा अपने पास? EA। बोलो ये बात समझ आई? ये चीज समझ आ रही है? This is the resultant of EB and ED, okay, and this is already present, okay, ये तो पहले से था ना अपने पास। बोलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? EB and ED का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। Okay, so the ER is equals to, क्या अपन EB को E बोल सकते हैं? Obviously EB क्या है? This is the E and this is E. Okay, दोनों ही क्या है अपने पास? इक्वल हैं। So this will be E square plus 2 E cos 90 degree whole root। बोलो अपन सही कर रहे हैं? कोई दिक्कत है? Cos 90 is the 0, so this complete value will be 0, so this will become 2 E square whole root. Okay, so this is root 2 E square, sorry E, बोलो कर सकते हैं इसको अपन root 2 E। Okay, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है, this is the root 2 E। Okay students, so now we know that the ER and the EA both have the same direction, so दोनों की अगर डायरेक्शन है तो अपन क्या E नेट फाइंड आउट नहीं कर सकते? दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, सो द ER प्लस EA। ओके, सोल्व कर दे इसको अपन। सो दिस इज द रूट 2E, ओके, देन प्लस EA इज दिस इज द KQ। चलो इसको अपन पहले क्या E बोल दे, कोई दिक्कत होगी? E लिख देते। चलो ओके स्टूडेंट्स, एंड आउट नाउ। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई भाई, एक गड़बड़ हो गई इसमें।
ई ए की अगर हम बात करूं तो अपन ने कौन सी डिस्टेंस काम में आएगी, ये वाली डिस्टेंस काम में आएगी कि नहीं आएगी बताओ? दिस इज नॉट ए, दिस ए, बट वी नो दैट दिस इज द डायगोनल, so we can apply the Pythagoras theorem. So this will be a square plus a square whole root. Okay, so this will become 2a square whole root, and 2a square whole root की वैल्यू बताओ कितनी होगी, रूट 2a. ओके स्टूडेंट्स, सो अपन इसको क्या कर सकते हैं, रूट 2a बोलेंगे भी. ठीक है, तो थोड़ा सही गड़बड़ हो चुका है, लेकिन इसको अपन सही करेंगे. यहाँ पर पास क्या आएगा, देखो डिस्टेंस कितनी है बताओ, रूट 2a, तो इसका अपन होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे. This will be root 2a whole square. Okay, ठीक है, this is the root 2a whole square. बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं सॉल्व करके. दिस इज द k क्यूब अपॉन 2a स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको अपन ई के इक्वल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये तो अलग हो गया ना. देखो ये क्या है, अलग है, डिफरेंट है. ठीक है, तो ध्यान से देखो. ठीक है, दिस इज द ई ए एंड द वैल्यू ऑफ ई ए इज के क्यूब अपॉन 2a स्क्वायर. बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? भाई यहाँ कुछ भी नहीं किया अपन ने, जो डिस्टेंस थी इनके बीच उसको क्या किया है, चेंज किया है. बिकॉज दिस इज द रूट 2a नॉट a, दिस इज द रूट 2a. ओके, सो रूट 2a होल स्क्वायर, दिस इज द 2a स्क्वायर. बोलो कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी इनकी वैल्यू आप पुट कर दो. सो दिस इज रूट 2 इज द k क्यूब बाई a स्क्वायर, दिस इज द k क्यूब बाई a स्क्वायर. ओके, देन प्लस k क्यूब बाई a स्क्वायर 2a स्क्वायर. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अपन k क्यूब बाई a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. दिस इज द k क्यूब बाई a स्क्वायर एंड दिस विल बी रूट 2 प्लस हाफ. ओके, दिस इज न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो यही अपना क्या होगा, इसका सॉल्यूशन. बोलो कर सकते हैं. यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, फटाफट देखो, सोचो, और कोई दिक्कत है तो बताओ. बोलो कर सकते हैं. ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है, दिस इज द स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज द प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू. एनी डाउट? कर सकते हैं यहां तक? ठीक है, अगर मैं बात करूं दिस इज द स्क्वायर, सो दिस इज ए एंड ए. ये बात भी सही है. चलो, अगर मैं बात करूं यहां पे, सपोज दिस इज डायगोनल एंड दिस इज डायगोनल. ओके, दिस इज ए बी सी एंड डी वर्टेक्स. ओके, एंड दिस इज ओ, दिस इज ओ. ओके, क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट. ओ पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो ये चीज आपको पहले समझनी कि ओ पॉइंट क्या है. दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल. ओके स्टूडेंट्स, एंड वी नो दैट डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर फॉर द स्क्वायर. स्क्वायर के लिए दोनों क्या करेंगे, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं. ये चीज अपन को पता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं दिस इज द ए एंड दिस इज द, सबसे पहले अपन ये डिस्टेंस निकाले, क्योंकि अपन जाते हैं ये पॉइंट अगर अपन को चाहिए तो क्या ये वाली डिस्टेंस अपन को नहीं चाहिए होगी, भी चाहिए होगी ना. सबके लिए ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपन को, तो पहले अपन फाइंड आउट कर लें. ओके, सो वी वांट टू फाइंड द ओ ए. हाउ कैन वी सॉल्व इट? बिकॉज वी नो दैट दिस इज द right angle triangle, this is the right angle triangle ADC. Okay, so and this is the 90 degree angle.
बोलो सही है बात। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन से दैट AC square is equals to A square plus A square whole okay, so this is the 2A square. Now this is the AC. Okay, root 2 कर सकते हैं इसको ऊपर. So this will become root 2A. Okay, now we want to find the half of this AC. AC का क्या निकालना है अपन को? हाफ फाइंड आउट करना है. So this is the AO and this is the half of AC. Okay students, so this is the root 2A upon 2. Okay, root 2 से अपन जानते हैं कितने टाइम कटेगा? A upon root 2. बोलो ये चीज सॉल्व कर सकते हैं अपन यहाँ तक. Okay, so this is the distance. So this is the A upon root 2. This is A upon root 2. A upon root 2. A upon root 2. Okay, this is the A upon root 2. ठीक है, सारे अपने पास जो अपने AO, OB, OC एंड OD ऑल द आर A अपॉन रूट 2. बोलो ये चीज समझ गए अपन. अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन की. ठीक है, तो इसको बीच में से हटा दूं मैं. ठीक है, इसको अपन क्या करने वाले हैं? इरेज करने वाले हैं. ओके, अब देखो ध्यान से. अपन जानते हैं दिस इज द O. भाई सबको भूल जाओ, पहले अपन एक ही बात करते हैं. दिस इज द A वर्टेक्स एंड दिस इज द O, जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. बाकी इन तीनों को भूल जाओ. अपन कहते हैं दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द EA एंड आउट स्टूडेंट्स. ओके, बात करते हैं अपन B की. ऑब्वियसली दिस इज द प्लस Q, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस Q विल बी आउटवर्ड. देखो यहां से आउटवर्ड निकलेगी कि नहीं? दिस इज द EB एंड इज आउट. नाउ नेक्स्ट दिस इज द C की बात करें तो ये है अपने पास नेगेटिव एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मींस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड. रेडियली इनवर्ड, तो अपन जानते हैं ये माइनस क्यों क्या करे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड, इसकी तरफ ही तो होगी. बोलो बात समझ में आ रही है? सो दिस विल बी EC रेडियली इनवर्ड. दिस इज द माइनस Q. सो डायरेक्शन ऑफ दिस ऑब्वियसली दिस इज रेडियली इनवर्ड. भाई डायरेक्शन कैसे आएगी? यूं तो आएगी अंदर की तरफ. नेगेटिव डायरेक्शन कैसी होती है? यूं तो होती है. बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, सो दिस विल बी E एंड D. ओके, ED. बोलो कर सकते हैं अपन. हुआ क्या? देखो अपने पास कैसे बन गया डायरेक्ट. इसका डायग्राम अपन देखते हैं. ओके, दिस इज द ED एंड EB. ओके, एंड दिस इज द EA. ओके, एंड दिस इज EC. बोलो सही है बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अपन जानते हैं इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम. तो पहले अपन इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बोलो कर सकते हैं दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट. सो वी कैन से, ठीक है, पहले अपन सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें. दिस इज द EA विल बी KQ अपॉन डिस्टेंस बताओ कितनी है? A अपॉन रूट 2. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस इज द A अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर एंड आउट. बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो अपन जानते हैं दिस विल बी A स्क्वायर बाई 2. ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर? सो दिस विल बी KQ बाई A स्क्वायर एंड आउट. ओके, नाउ नेक्स्ट दिस इज द EB. ओके, अगेन EB भी पॉजिटिव है अपन जानते हैं. सो दिस विल बी AKQ अपॉन A अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 2KQ अपॉन A स्क्वायर. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या अपन ऐसे EC फाइंड आउट कर सकते हैं? दिस विल बी ऑल्सो 2KQ बाई A स्क्वायर एंड द ED विल ऑल्सो सेम. देन दिस इज द KQQ अपॉन A स्क्वायर. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर सभी इक्वल है तो इन सबको अपन क्या E नहीं बोल सकते? भाई सबको अपन E नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं. तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों का अपन को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. ओके, सो
resultant of ED and EB can be represented by E1 बोल दें या ER1 बोल दो, चलो. This is the first resultant. Okay students, so this is the ER1. Okay, so this will be addition of ED plus EB. Any doubt? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट होगा? Obviously, so this will be 2E. क्या अपन इनको 2E बोलता B के लिए? बोल सकते हैं क्या, बताओ? 2E, because this ED is E. Okay, this EB is E. This will be 2E. Now next, this is the ER2. अब देखो ध्यान से, क्या EA और EC सेम है दोनों? So this will be the EA plus EC and this is also called 2E. Any doubt? देखो वैल्यू भी रख सकते हैं अपन यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं, बट ये थोड़ा इजी हो जाएगा अगर अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से हुआ क्या. इसका जैसे अपन ने सॉल्यूशन किया तो अपने पास क्या बना? दिस इज द ER1 सॉरी, एंड दिस इज द ER2. बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? कोई दिक्कत है क्या? अपन जानते हैं इसके बीच में एंगल कितना है? दिस इज द 90 डिग्री. अपनी चीज पता होनी चाहिए. द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री. 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट. तो अपन को इसके बीच का क्या पता चल गया? एंगल. तो क्या अपन इसका रिजल्टेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? बोलो. ओके, नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. वी कैन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द, अब देखो ध्यान से, वी कैन से दिस इज द 2E होल स्क्वायर प्लस 2E होल स्क्वायर प्लस 2. फर्स्ट वाली कितनी है अपने पास? 2E. ओके, एंड द सेकेंड इज 2E. ओके, एंड दिस इज द cos 90 डिग्री. बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? स्टूडेंट्स, एक चीज हो, यहाँ पर रूट भी आएगा. This is the root. Okay, so we can solve it. This is the 4E square. This will be 4E square. Okay, and root. So this will become 8E root, and this is the value of root 8 is equals to 2 root 2. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू E. क्या अपन यहाँ पे E की वैल्यू जानते हैं? दिस इज द 2k cube a square. ओके, देन पुट दिस वैल्यू. दिस इज द 2 root 2 एंड दिस इज द 2k cube by a square. k cube by a square. बोलो कर सकते हैं इसको अपन? क्या एक कैमरे में दिख रहा है आपको? हाँ, देखो अब ध्यान से. देखो, this is the 2 into 2, so this will become 4 root 2. Okay, and this is the k cube by a square. Okay, so this is the Newton per coulomb. ठीक है, यही अपना क्या होगा? आंसर. बोलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अब अपन कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं. अब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके बुक्स में है इनको आप सोल्व करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे कि आपने फोर्स में किया था इक्विलिब्रियम, सेम टाइप क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट. ओके, सपोज दिस इज द एनी चार्ज. ठीक है, अपन इसको कोई भी चार्ज ले सकते हैं. सपोज दिस इज प्लस Q चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द प्लस 4Q चार्ज. एनी डाउट? ओके, क्वेश्चन क्या है? Suppose this is the distance between the two charges. ठीक है, कुछ भी आप डिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हो उसको आप. दिस इज द L. ओके, सपोज दिस इज द L डिस्टेंस
find the point where electric field is 0. ओके स्टूडेंट्स, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, मीन्स दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। जैसे अपने फोर्स में देखा था सेम वैसे अपन इसको देखना। अपन जानते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द plus q charge and this is the plus 4q charge. Okay, and this is the distance between them. Okay, so students, suppose अब वही अपने पास 3 के कंडीशंस आती हैं कि अपन किसी भी पॉइंट को यहाँ पे लेट करें, यहाँ पे करें कि यहाँ करें। ओके स्टूडेंट, तो वही अपन चेक करते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ पे अपन ने रखा पहले ऑब्जेक्ट को, object क्या, sorry, this is the point where we want to find the electric field. Okay, electric field is 0, जहाँ पे पर क्या निकाला, electric field 0. Okay, अब देखते हैं this is the plus q charge. Okay, तो अपन जानते हैं this will be radially outward. Okay, this will be, suppose this is the first charge and this is second charge. Okay, so due to this the electric field will be radially outward. Next, this is the plus 4q charge, plus 4q charge. Okay, this is the second charge. Okay, due to the plus 4q charge, it will be also radially outward. ये भी क्या होगा बताओ, radially outward. बोलो यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब यहाँ तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन में क्या होगी, ऐड होगी। दूसरी बात अपन बात करते हैं यहाँ की, ठीक है, यहाँ भी शायद मेरे हिसाब समझ गए होंगे आप। ठीक है, अपन जानते हैं दिस विल बी E2 एंड दिस विल बी E1, तो यहाँ पर भी अपने पास पॉसिबल नहीं है। नाउ दिस इज द प्लेस, सपोज यहाँ पे अपन ने ए पॉइंट माना। ओके, सपोज दिस इज एनी पॉइंट, ठीक है, चेक करते हैं। अपन जानते हैं दिस इज द प्लस q चार्ज, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1. ओके, दिस इज द माइनस 4q चार्ज, सो दिस इज द रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2. तो अपन समझ गए होंगे कि अपन कहाँ पर रखेंगे पॉइंट। ओके, यहाँ पे अपन इस पॉइंट को रखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, वही चीजें सेम जो अपन ने पहले किया था। दिस इज द x डिस्टेंस, ओके, एंड दिस विल बी L माइनस x डिस्टेंस। एनी डाउट? ओके, लेट A is the point, कैसे शुरू करोगे, let A is the point where electric field is 0, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपने पास, 0 है। ओके, सो वी कैन से दैट द E1 इज इक्वल्स टू E2। बोलो सही है बात भाई, ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो कैंसिल आउट कर पाएंगे दूसरे को, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ओके, सो E1, अब अपन E1 बात करते हैं। E1 किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू दिस चार्ज, सो द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इज KQ अपॉन डिस्टेंस is x square. This is the distance of the point and the plus q charge, this is the x, so this will be x square. Any doubt? Okay, now this is the second electric field, okay, due to this charge, so the value is the K4Q upon L minus x, this is the L minus x whole square. कोई डाउट है यहाँ तक? क्या अपन K से K कट कर दें, Q से Q कट कर सकते हैं? Now same thing, this is the L minus x and this is the x square, this is whole square. Okay students, now this is the equals to 4. Any doubt? Okay, so take the square root of the both sides, then this will become L minus x and this is the x and this will be plus minus 2. Okay, देखो इस बार अपने plus minus 2 लिया है, पहले भी अपन लेते हैं, ठीक है, पहले भी अपन इसको वैसे लेंगे। अब देखो ध्यान से, वही दो केस बनेंगे, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 2 और L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2. ओके, देन वी कैन सॉल्व इट, दिस इज L माइनस एक्स एंड दिस इज द 2x, सो L इज इक्वल्स टू 3x एंड x इज इक्वल्स टू, दिस इज L by 3.
L by 3. Now this is the second. This is the L minus x is equals to minus 2x. Send it out. Add it out. Okay. Now this is the L is equals to, इसको अपन राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे. Then it will become minus 2x plus x. So this will be minus x. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? Okay. So this is the minus L is equals to x. बोलो ये दो वैल्यू अपने पास आ चुकी है. बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसमें से राइट कौन सी है वो अपन को चेक करना है. देखो माइनस एल का मतलब क्या होता है? दिस इज द एल, दिस इज द एल. तो माइनस एल किधर आएगा? इस तरफ आएगा, बिकॉज दिस इज द जीरो. भाई यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? तभी तो ये यहाँ से देखो 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज द एल सेंटीमीटर. अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड तो दिस विल बी नेगेटिव. और यहाँ पे तो अपने पास कोई पॉइंट है ही नहीं ना. तो यहाँ पे तो अपन पॉइंट ले ही नहीं सकते. तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? नॉट पॉसिबल. ओके. बट अपन जानते हैं इसके मिडिल में पॉसिबल है कहीं ना कहीं पे. है क्या? बताओ पॉसिबल. L by 3 का मतलब क्या होगा? ठीक है. देखो इसका मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ. अदर. ओके. दिस इज द प्लस q एंड दिस इज प्लस 4q चार्ज. ओके. एंड दिस इज द डिस्टेंस L. ओके. तो अपने पास जो आंसर आया वो क्या है? देखो L by 3. अगर मैं L by 2 की बात करूँ तो L by 2 कहाँ होगा? बताओ. दिस इज L by 2. L by 3 लेफ्ट हैंड साइड में होगा कि राइट हैंड साइड में? L by 3 ऑब्वियसली दिस इज द लेस देन L by 2. सो ऑब्वियसली ये कहाँ होगा? इस तरफ. सो दिस इज द L by 3. बोलो बात समझ आ रही है? देखो ये कहाँ पे आया? नियर टू द स्मॉल चार्ज. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए. हमेशा जो आंसर आएगा इस टाइप से कहाँ पे आएगा? हमेशा नियर टू स्मॉल चार्ज. नियर टू स्मॉल चार्ज. क्यों? देखो मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया था. यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, देखो मिड में रखता हूँ, तो आपको पता है डिस्टेंस तो सेम है, तो इसका तो फर्क पड़ेगा नहीं. लेकिन यहाँ पे अपन जानते हैं प्लस क्यू चार्ज, प्लस 4q चार्ज एंड दिस इज द प्लस q चार्ज. तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगी. तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना मिड में. तो भाई डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा. बट चार्ज, दिस चार्ज इज ग्रेटर देन दिस, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज विल बी ग्रेटर एट दिस पॉइंट, मिडिल पॉइंट. अगर मैं यहाँ से इसको दूर लेके जाऊँ, अब देखो धीरे धीरे होगा क्या. जैसे मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसका तो चार्ज क्या होगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज विल डिक्रीज. धीरे धीरे डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? देखो आगे बात समझ रहे हो? और यहाँ पे आके क्या होगा? दोनों में इक्विलिब्रियम हो जाएगा. ठीक है. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट दिस पॉइंट. बोलो कर सकते हैं. ओके. सो दिस विल बी राइट आंसर. ओके स्टूडेंट. अब एक क्वेश्चन वही मैं आपके लिए दे रहा हूँ. क्वेश्चन क्या है देखते हैं अपन. ठीक है. यहाँ पे बना दो उसको. चलिए यहाँ बना देते हैं इसको. ओके. Suppose this is the plus 4q charge and this is the minus 9q charge. Okay. And this is the distance between them and this is called L. Okay. Find the electric field. Same question आप इसको नोट करो. Find the point where the electric field is 0. Okay. और इसका आंसर आपको कमेंट में नोट करना है. ओके स्टूडेंट्स, कमेंट में आप इसको टाइप करें. ओके. सो दिस इज द लेक्चर ऑफ टुडे. ओके. आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएंगे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स. ओके. अब इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में या अदर आपको कहीं से भी न्यूमेरिकल मिलते हैं, ठीक है, उनको आप सोल्व करें. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज न्यूमेरिकल्स इज द प्रैक्टिस वर्क. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको नहीं आएंगे. Okay students, so take care, bye.